Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. Today, we'll be doing an important topic, that is essay writing. This is one of the important writing skill that comes in your writing portion in your second section of the examination, that is your English question paper. As essay writing is very easy, but it requires a lot of brain exercise where you have to first analyze the things, and then you have to synthesize those sentences and then evaluate and then write down your own thoughts in your words. Basically, it requires a good vocabulary, a good command over reading skills. So please make sure that you will read a lot of books in your life, because reading is one of the most essential activity that one can do to improve English. And just focus on grammar. So let's just begin with this essay writing. I'll be giving you a few examples so that definitely be helpful for you to write the further essays for you. So let's just begin. It's essay writing, right? An essay is a short piece of composition that informs its audience, जो कि inform किसे करता है, अपनी audience को. An essay can be length ranging from 2 paragraphs to more than 5 paragraphs. Basically, the length होता है. Sometimes teacher says that you have to write down an essay on your mom in just 50 words, in just 75 words. Sometimes it's 120 words. Sometimes it's 200 words. Sometimes it's 250 words also, right? So basically, it has a range. So what are the steps to write an essay? First, you decide your topic, that what your topic is, on what topic you are going to write. Then you have to prepare an outline कि आप उस पे क्या क्या add करने वाले हैं, right? Then you have to write the introduction of the topic, and then the body, and of course then the conclusion you have to write. So this is the format that you what steps you can involve to write an essay, right? Now next, we are writing an essay or on family. Very important. Sometimes you must have all been writing an essay on your family. First, family is the most important unit of our life. हमारी life की सबसे important unit family है, because it's the family only who give us the strength to do everything. It's the family only who helps our mind, basically who helps our personality in developing our personality mentally, physically, socially, economically, and of course it's the मेंटल स्टेबिलिटी. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मेंटल स्टेबिलिटी जो हम लोग की फैमिली हम लोग को देती है. तो मेंटली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो आवर फैमिली सपोर्ट्स अस, इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड सोशली ऑल्सो. तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर रिलेशनशिप बाय ब्लड और बाय बर्थ, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बाय बर्थ से ही, बाय ब्लड से, या फिर यू कैन से ब्लड से या फिर बर्थ से चीजों को, रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैमिली. आई लिव इन अ स्मॉल जॉइंट फैमिली. मेरी एक छोटी सी जॉइंट फैमिली है विद माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स, मतलब कि मेरे भाई बहन. वी आर 6 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग वन सिस्टर, माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स हैं, माई पेरेंट्स हैं और मेरी एक सिस्टर. यू कैन सी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ये दोनों भाई बहन है, राइट? दिस इज अ जॉइंट फैमिली. मेरे फादर जो है वो इंजीनियर हैं. एन इंजीनियर आया, देख लीजिए वॉवल से पीछे आया हुआ है. मेरी मदर एक टीचर है एंड माय ग्रैंडफादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय. वो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. ये गवर्नमेंट की एब्रीविएशन दे रखी है, ये देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है. ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी हेल्पफुल, केयरिंग, लविंग टुवर्ड्स ईच अदर. बहुत ही ज्यादा प्यार है, एक दूसरे की केयर करते हैं, काइंड हैं, राइट? माय ग्रैंडमदर एंटरटेन अस विद अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरीज बिफोर बेड टाइम एवरी नाइट. सोने के वक्त हमारी ग्रैंडमदर हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, जिससे कि हमें बहुत मजा आता है. All my family members, they gather in the lawn of our house after dinner every night to share the stories and have talks with each other. एक दूसरे से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, यही होता है फैमिली में. और खाने के बाद हम लोग एक साथ गैदर करते हैं. गैदर मीन्स वी कलेक्ट. ओके. माय फैमिली हैज गिवन मी अ गुड लेसन ऑफ यूनिटी. मेरे को एक साथ रहने की सीख दी है. लव, कॉपरेशन की, कैसे कॉपरेट किया जाता है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, कैसे चीजों को देखा जाता है कि कभी कोई प्रॉब्लम है तो हम हेल्पफुल नेचर दिखाएं विद ईच अदर. वी ऑल्सो हेल्प ईच अदर इन हाउस होल्ड चोर्स. हम घर के कामों में भी एक दूसरे को मदद करते हैं. एंड दिस इज हाउ अ फैमिली resides, where we also have to support our parents sometimes. Sometimes our parents support, sometimes we have to support our grandparents. Moving on to the next example is the television. Television, it is one of the most important media of communication.
As we all know, this is one of the most important source of कम्युनिकेशन. यही है वो चीज जो हमको चीजों को, न्यूज को इधर से उधर फैलाती है, राइट. तो इट इज अ डिवाइस विद अ स्मॉल स्क्रीन. एक डिवाइस है जिसमें छोटी सी स्क्रीन है. इट शोज द प्रोग्राम्स दैट आर रीप्लेड बाय टीवी स्टेशन और सैटेलाइट, जो कि रिले किए जाते हैं, जो डिपेंड करते हैं टीवी स्टेशन पे और सैटेलाइट्स पे. वही चीजें हमें ये दिखाती है. इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस. साइंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा गिफ्ट है. इसको हमको, टू मैन, टू ह्यूमन बीइंग. इट हैज बिकम वेरी कॉमन दीज डेज. हर किसी के घर में दिखाई देता है ये. इट इज अ ग्रेट वंडर ऑफ साइंस. साइंस का बहुत ही बड़ा ही दान है ये. एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है. इट गिव अस साउंड एज वेल एज पिक्चर. ये हमें ऑडियो वीडियो दोनों दिखाता है. इट प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट इन द कंफर्टेबल सराउंडिंग. हम अपने घर में आराम से टीवी लगा के देख सकते हैं. यू कैन वॉच मूवीज, टीवी सीरियल्स, film songs and other entertaining programs on the television. As you can see, the family is enjoying a television, whatever they are seeing. Moving on to the next, apart from entertainment, television is a source of knowledge also. हमें news भी मिलती है यहाँ पे, right? We can know the latest news of India as well as of the other countries. That is national, international news channels होते हैं हम लोग के. And one of the most important and authentic source of news channel is the DD news channel. That is the only channel which is very authentic and which gives us all kind of information regarding the you can say regarding national also and international also. Lovers of game, they can watch games being played. और हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं. वीडियो गेम्स कैन बी अटैच टू द टेलीविजन एंड ऑफन देयर इज अ डायरेक्ट टेलीकास्ट ऑफ सम गेम्स. और कुछ कुछ चीजों का डायरेक्ट टेलीकास्ट भी होता है. बट टेलीविजन के जो है, इट हैज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं. दैट इट हैज अ बैड इफेक्ट्स ऑन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चे 24 घंटे टेलीविजन के सामने चिपके रहते हैं. उससे उनकी आईज को इफेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है. इट इज प्लेइंग हेवॉइक. हेवॉइक मीन्स डिजास्टर. हेवॉइक मीन्स डिजास्टर विद द यंग जनरेशन. यंग जनरेशन के साथ बहुत ही ज्यादा कभी कभी डिजास्टर चीजें भी दिखाते हैं. दे बिकम एडिक्ट टू टीवी. भाई टीवी देखना ही देखना है. एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड. दिस इज ट्रू. अगर आप किसी भी चीज की अति कर देंगे अपनी लाइफ में, वो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी. तो सम पीपल कॉल इट एन इडियट बॉक्स ऑल्सो. कभी कभी लोग इसको इडियट बॉक्स भी बुलाते हैं. Moving on to the next example is the postman. Who is the postman? Postman is the one who is the messenger of basically who supplies the letters from one place to another, right? तो पोस्टमैन एक पब्लिक सर्वेंट है, सरकार के लिए काम करता है. ही इज वेरी यूजफुल टू द सोसाइटी. हम लोग के मेल्स को, लेटर्स को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में कौन मदद करता है? पोस्टमैन ओनली. ही डिलीवर्स द मेल, मनी ऑर्डर्स, इनविटेशंस, पार्सल्स टू अस, राइट. ही wears a khaki uniform. खाकी सी यूनिफॉर्म पहनता है ये. he carries a bag across his shoulders. अपने शोल्डर के ऊपर एक बैग कैरी करता है. and he used to keep all the letters and parcels inside us. उसके अंदर सारे लेटर्स भी होते हैं और पार्सल्स भी होते हैं. he can read English as well as Hindi and as well as another language also. It depends on which state he is working. Right. He gets up early in the morning and at first he goes to the post office. सबसे पहले वो उठ के पोस्ट ऑफिस जाता है. He used to collect those letters of the area that they have to distribute. Right. And after collecting the letters, they delivers these letters to us. हमारी तरफ ये पहुंच जाते हैं. He goes from door to door. एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाता है. And he delivers the mail. He brings happy news as well as sad news. कभी कभी अच्छी खबरें भी लेकर आता है, कभी कभी bad news भी लेके आता है. He undertakes daily 2 rounds in his area. हमारे एरिया में क्या करता है? 2 चक्कर काटता है रोज के. Whether it rains or it's hot, he does the work regularly and he is very punctual. This is true. बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हमारी चिट्ठी अगर आज डिलीवर होनी है तो आज ही होनी है. बिकॉज एवरीथिंग इज अपडेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, राइट. ही इज वेरी पंचुअल. एवरी डे वी वेट फॉर हिम एंड ही ब्रिंग्स न्यूज फॉर आवर एल्डर्स एंड फॉर आवर रिलेटिव्स, एल्डर्स, फ्रेंड्स, सबके लिए न्यूज भी लेकर आता है. He is honest. He works very hard and we should be thankful for him for working so hard for us. हमको उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए that he used to do all those activities for. Moving on to another example is trees. As we all know, trees are the biggest source of everything that we receive in our life. Trees are our best friends. हमारे क्या होते हैं? ये best friend होते हैं. They play a very important role in our life. हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा important role play करते हैं. We cannot live without them because they give us everything: fruits, vegetable, air, everything.
दे गिव अस टिम्बर, पेपर, फायरवुड, सब कुछ मिलता है हमें इनसे। टिम्बर इज यूज इन मेकिंग हाउसेज, जो हमारे घर में हाउस बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स बनते हैं, बिग बॉक्सेस, टूल, पेपर, सब किससे बनते हैं? पेड़ से बनते हैं, राइट? दैट इज द वुड गिवन बाय ट्रीज, टिम्बर। विदाउट पेपर लाइफ में बी डिफिकल्ट फॉर अस, बिना कागज के किताब हमारे लिए, हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। पेपर इज नेसेसरी फॉर स्टडी एंड राइटिंग, पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। पीपल इन विलेजेस यूज फायरवुड टू कुक मील्स, फायरवुड यूज करते हैं, लकड़ियां जला के अपना खाना बनाते हैं, बिकॉज दे हैव नो सोर्स ऑफ दिस एलपीजी सिलेंडर्स दैट आर यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड। दे यूज वुड टू बिल्ड हाउसेज, हट्स, कार्ट्स, एग्रीकल्चर टूल्स, ये सब चीजें बनाने में मदद करते हैं, बिकॉज ये सब चीजें बनाकर ही वो अपनी इनकम का सोर्स जनरेट करते हैं, राइट? ट्री ऑल्सो गिव अस फूड, गम एंड मेडिसिन, हम लोग को ट्रीज हमें फूड भी देते हैं, गम्स भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। देखिए मेडिसिनल प्लांट्स यू कैन सी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, हर्ब्स, ये सब मिलते हैं। दे ऑल्सो ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, हमारी लाइफ को ब्यूटी में भी ऐड करते हैं। गार्डन्स कैन नॉट बी चार्मिंग विदाउट देम, गार्डन्स कैसे डेकोरेट होते हैं? इन्हीं पेड़ों से। एंड वी नीड देम फॉर ऑक्सीजन एंड गुड हेल्थ, हमें ऑक्सीजन चाहिए, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ट्रीज ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, गंदगी नहीं होने देते हैं, प्रदूषण नहीं होने देते हैं। दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव अस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। दे इम्प्रूव आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रीज। दे कॉज रेनफॉल एंड प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड में जो नीचे होती है रिसोर्सेज उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं पेड़। दे प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, सूखा पड़ने से और बाढ़ आने से बहुत मदद करते हैं। Therefore, we should try our best to grow more trees, or to grow trees. We can use for this a term that is afforestation, और इसी का opposite है deforestation. Cutting down of trees is known as afforestation, and planting more and more trees is known as afforestation. Government and social welfare society should start a movement where आप इन पेड़ों को बचाएं, and they should be an awards for those persons जो बहुत ही ज़्यादा पेड़ लगाएं. Please make sure that you will read all these 4 paragraphs, very useful. And similarly, you can write 2 paragraphs on your own by using your brain and and having a good skill over writing and framing good sentences. Please make sure that you will do this homework, do reading every day. Please keep smiling and stay hydrated.